Hi guys, welcome to By Explaining. So this video is about the ultimate class 10 science 1 month strategy for your upcoming board exams. So your CBSE exam is starting on the 15th of February and today is the 16th of Jan. So you exactly have just 1 month in hand. So in this video, I'll be talking about an appropriate strategy that you should follow for getting good results in your board exam such that you can revise the entire science syllabus in a perfect manner. Well, so talking about your science syllabus, for physics you have 5 chapters, for chemistry you have 4 chapters, and for biology you have 4 chapters. So taken together that makes a total of 13 chapters which you have to revise. So now let's see how we can utilize this 1 month in revising all the different chapters. For day 1, I'm keeping the chapters chemical reactions and equations, acids, bases and salts. Why am I keeping them together? Because these are related chapters where you have a lot of different chemical equations to learn. So read NCERT thoroughly, practice every equation, and along with that also practice the balancing very carefully, because we know that an unbalanced equation is not considered to be a perfect answer. Right? Read your class notes, read your NCERT very well, and practice every equation carefully. So that is your day 1, and to complete these 2 chapters, you should be giving not more than 3 hours of the day. The rest time of the day, utilize in studying other subjects such as your English, your SST, and practice mathematics, all the others that are there. You can utilize it according to your own routine. Day 2, take up a biology chapter, that is life processes. Now this is a pretty lengthy chapter, so I'm keeping it alone. What you're going to do is practice all the diagrams that are there, the different labelings that are present in every diagram, then read your NCERT thoroughly and carefully. Okay, and go through your class notes very well. Whether you've studied from online batches or you have taken separate tuitions or you've done self-study throughout the year, I hope every one of you have separate notebooks where you've prepared your class notes. So go through that very carefully. अब डे नंबर 3 में I'm keeping light, reflection, refraction and human eye and the colorful world. दोनों को क्यों क्लब कर दिया मैंने? Because ये एकदम related chapters है. Human eye, colorful world is all about light and there are different questions related to light also. So for these 2 chapters, you will first practice all the ray diagrams, जितना भी है, for different positions of the object, for your mirror, for your lenses, convex, concave both, as well as human eye में myopia, hypermetropia का भी जितना ray diagrams आता है, corrections and all, सब कुछ अच्छे से कर लोगे. Okay, then read the NCERT chapters thoroughly. When I say thoroughly, it's like line by line अच्छे से पढ़ो. And then अपना जो class notes है उसे भी बहुत अच्छे से पढ़ लो. Okay. देन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, जैसे आपका मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हो गया, सारे के सारे जितना न्यूमेरिकल्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो. डे 4 में आई एम कीपिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सिंगुलर चैप्टर. अच्छे से पहले एनसीईआरटी को पढ़ लो एकदम थरली, देन अपना क्लास नोट्स को पढ़ो एंड देन जितना भी केमिकल इक्वेशंस है बैलेंसिंग के साथ एकदम परफेक्टली तैयार कर लो. तो हो गया आपका डे 4 एंड ये चैप्टर करने के लिए आपको 1.5 to 2 आवर्स से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी पहले सब कुछ पढ़ के रखा है. दिस इज जस्ट रिविजन टाइम. देन बाकी दिन आप अपने हिसाब से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एलोकेट कीजिए. डे नंबर 5 में जो करोगे वो है रिविजन. लास्ट 4 डेज में तुमने जितना कुछ किया, ऑल द डिफरेंट चैप्टर्स यू हैव स्टडीड, उनमें से क्या चीज लग रहा है कि बार बार तुम भूलते जा रहे हो, कि रिटेन नहीं कर पा रहे हो, वो सारे एरियाज को पहले जाके रिवाइज करो. एंड देन जितना तुम्हारा इक्वेशंस था, जितना न्यूमेरिकल्स था, फॉर्मूले थे, उन्हें एक बार लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लो.
तो तुमने लास्ट 4 डेज में जो किया वो एकदम तुम्हारे दिमाग में एक रिकैप होके बैठ जाएगा। ये रिवीजन वर्क के लिए तुम अपने आप को 2 hours से 2.5 hours दो. That should be enough for you to master whatever you have learned in the past 4 days. डे नंबर 6 पे फिर से एक बायो का चैप्टर लो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या करना है, सारे डायग्राम्स करना है, डायग्राम के साथ साथ लेबलिंग बहुत अच्छे से देखना है, एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है, अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, एंड एनसीईआरटी में अगर उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है फिर भी एंडोक्रिन ग्लैंड्स का सारे फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है, एड्रीनल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये सारे जो फंक्शन है एटलीस्ट 1 or 2 मेजर फंक्शंस आपको अच्छे से याद कर लेना है। डे नंबर 7 फिजिक्स पकड़ो, इलेक्ट्रिसिटी। कैसे पढ़ोगे, एनसीईआरटी को थरोली रीड करोगे, गो थ्रू योर क्लास नोट्स एंड प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स। ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिफरेंट सर्किट डायग्राम है, आपके पास रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल्स है, तो फॉर्मूलाज याद कर लो पहले, थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ के नोट्स रिवाइज करके देन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने में आपको लग जाएगा लगभग 2.5 to 3 hours अगर डिटेल्ड वे में करोगे। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट पसंद है वो आप रिवीजन कीजिए। ओके, डे नंबर 8 केमिस्ट्री पकड़ो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। प्रिटी लेंथी चैप्टर, तो पहले एनसीईआरटी रीड करो, देन अपना क्लास नोट्स, देन इक्वेशंस को प्रैक्टिस करो बैलेंसिंग के साथ। एंड यस, जितने आपके यहाँ पे ना स्ट्रक्चर्स है, जैसे मान लो इथानॉल का स्ट्रक्चर हो गया, जैसे एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गया, होमोलॉगस सीरीज में कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये सारे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इतना कुछ करने के लिए यहाँ पे भी आपको 2 to 3 hours तो लग जाएगा अगर आप डिटेल्ड वे में केयरफुली पढ़ के तैयार करोगे तो। डे नंबर 9, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रिटी बिग चैप्टर विथ अ लॉट ऑफ डिटेल्स। सेम मेथड फॉलो करोगे, फर्स्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, देन अपना क्लास नोट्स, एंड देन जितने सारे डायग्राम्स है जैसे कि तुम देख के आइडेंटिफाई कर सको, ये यहाँ पे हो रहा है फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पे हो रहा है रीजेनरेशन, ऐसे एकदम अच्छे से एनसीईआरटी के जितने सारे इमेजेस है along with the labeling अच्छे से देख लेना, क्या क्या फंक्शन है ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स वो भी अच्छे से करना। तो फॉर दिस ऑल्सो 2 to 3 hours विल बी रिक्वायर्ड एंड देन द कॉन्सेप्ट शुड बी ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड योर हेड। अब आ गया डे नंबर 10, क्या करना है बेटा, रिविजन। लास्ट जितना कुछ तुम पढ़ के आए हो लास्ट 4 days सब एक बार रिवाइज कर लो, जो भूलते जा रहे हो ज्यादा उसे एक बार लिख लो। इक्वेशंस जो है आपका, न्यूमेरिकल्स है, अगर लग रहा है कि कोई डायग्राम आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है उसे थोड़ा कर लो। ठीक है, तो रिवीजन वर्क एकदम 2 hours 3 hours थोड़ा ज्यादा भी लगे तो बैठ के कर लेना, सो दैट यू डोंट फॉरगेट कि आपने एक के बाद एक क्या पढ़ाई किया। ठीक है, डे नंबर 11 में फिर से बायो का चैप्टर पकड़ेंगे, हेरिडिटी। यहाँ पे क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ो, क्लास नोट्स पढ़ो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिससे भी तुम पढ़े हो, ऑनलाइन बैचेस में, टीचर्स के पास जिससे भी पढ़े हो, तुम्हारे कॉपी में बहुत सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चंस रहेगा, है ना, तो वो सारे क्वेश्चंस को बिना देख के सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर ठीक से हो रहा है वेरी गुड, अगर नहीं हो रहा है देन फिर से कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। अगर कोई डाउट है अपना टीचर से पूछो, नहीं तो मेरे ही वीडियोस में कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर बायो के डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये गया आपका डे नंबर 11 एंड हेरिडिटी को अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके खत्म करने के लिए 2 to 2.5 hours आपको लगने वाला। डे नंबर 12 फिजिक्स का चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे एनसीईआरटी को पहले अच्छे से पढ़ लोगे, देन अपना क्लास नोट्स, एंड ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल है आपका, लेफ्ट हैंड रूल है, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल है, ऐसे ऐसे बहुत से रूल्स आते हैं।
तो एंड रूल्स के बेसिस में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, नॉट लाइक स्टेट द रूल। आपको बताया जाएगा कि करंट का डायरेक्शन ढूंढिए, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है वो ढूंढिए, ये सब आपको पूछा जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट्स एकदम बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स जितने हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी, यहाँ पे भी, उन्हें एक बार अच्छे से एक्टिविटीज एंड ऑल जो है सब कुछ एनसीईआरटी से डिटेल्स में पढ़ लीजिए। लगभग 2 से 3 घंटा लग सकता है, लेकिन एकदम दिमाग को शांत करके सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने मुट्ठी में कर लीजिए। देन योर डे नंबर 13 एकदम हल्का फुल्का चैप्टर जाएगा, आर एनवायरनमेंट। यहाँ पे तो एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ोगे एंड अपना क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से याद कर लोगे। नाउ डे नंबर 14 क्या करोगे? फिर से रिवीजन, राइट? तो जितना कुछ किया तुमने लास्ट 3 डेज में वो रिकैप करोगे, जो भूलते जा रहे हो वो लिख के पढ़ोगे, इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स जो भी है अच्छे से एकदम सब कुछ रिवाइज कर लोगे। तो अब डे नंबर 15 में तुम हो एकदम रेडी, तैयार, मतलब तुम्हारा फुल सिलेबस ऑफ साइंस एक राउंड रिवीजन ऑलरेडी डन। तो अब क्या करोगे? खुद को चेक करना है ना कि मेरा प्रेपरेशन कहां तक हुआ, कितना अच्छे से हुआ। तो टेक अ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ठीक है? अपने होम ट्यूटर के पास, कोई भी ऑनलाइन बैचेस में पढ़ते हो तो वहां पे एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, बहुत से सैंपल पेपर्स भी है, वो भी ले सकते हो, ठीक है? अगर अब आपके जो ट्यूटर है वो चेक करके दे रहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिंपल सैंपल पेपर से सॉल्व करके आंसर की से भी अपना आंसर्स चेक कर सकते हो। देन आंसर स्क्रिप्ट को एनालाइज कीजिए अच्छे से कि वेयर आर द मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं अभी भी सॉल्व हो रहे हैं आपसे, तो फिर से गो बैक टू दोस कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइज देम वंस, ठीक है? तो ये गया आपका डे नंबर 15। नाउ डे 16 ऑनवर्ड्स टिल योर एग्जाम, जितना हम लोगों ने अभी प्लानर किया इसे फिर से एक बार रिपीट कर दो। आपको अगर मान लो एक चैप्टर पहले करने में 2 घंटा यू टुक, अभी यू विल टेक जस्ट 1 hour टू डू दैट, क्योंकि दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बैठ गए। बस एक बार स्किम थ्रू करना है थ्रू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर present. So repeat the whole day wise planner again. Okay, so that's the strategy I have for you. Try to follow this and I hope it gives you all great results. If you think this is helpful, then like, comment, share and subscribe to our channel by Explaining by Anushka. Bye bye.